So I think any doubt regarding the constructor, method, class and object, whatever we have covered till now? है कोई ना कोई doubt? Okay. So today we'll start with the static keyword and the instance of operator, right? So I think some of the example of static is already covered in the earlier program, but let's see again. What do you mean by static? Let me share the screen. Visible છે? Yes, ma'am. Okay. So today we will see about the static keyword in Java and about the instance operator. Okay. So let me start. The static keyword in Java is used for memory management, right? We can apply the static keyword with variables and method, right? And the static keywords belong to the class and then an instance of the class. Okay, we will see the example. The static can be a variable and can be a method. Let's see the first static variable. Okay, if you declare any variable as a static, then it is known as the static variable. Okay, static variable can be used to refer the common property of all the object which is unique for each object. For example, the company name of the employee, college name of the student, etc. Right? So when you are using the static variable, તમે static variable आप कब use करोगे जब common properties आपको object को देनी होगी तब, right? That is company name सारे employee के लिए same होगी, same way the college name same होगा सारे students के लिए. So at that time you can use the static variable, right? Voice audible hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So static variable get the memory only once in the class area at the time of class loading. When the class आपका load होगा तब वो memory allocate होगा and at the time only one एक ही बार वो memory allocation होगा. In the case of static variable, right? Then what is the advantage of static variable? It make your program memory efficient. Means it save the memory. Okay. Let's see the example that understanding the problem without static variable, right? For example, your class is to student का एक class आपने create किया. In that, 3 members you declare. One is your integer roll number, then name and the college, right? And college name you have specified over as a ITS, right? So suppose there are 500 students in my college, and now all the instance data member will get executed each time when the object is created, right? Means every time instance create hoga or memory allocate hogi when the object is created for each the data member, right? For जितने students के objects create होंगे उतने आपको memory allocate होगी. So all the students have unique roll number and name, right? So roll number or name सारे students के अलग है. So you can use the instance data member for in that case.
बट व्हेन द कॉलेज रिफर्स टू द कॉमन प्रॉपर्टी, कॉलेज आपकी कॉमन प्रॉपर्टी है, वो एवरी टाइम सेम ही होगी, राइट? सो if we make it the static, this will get the memory only once. Okay, so let's see the example. आपका क्लास स्टूडेंट है, राइट? इसमें हम लोग ने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 3 वेरिएबल, वन इज रोल नंबर, नेम, और कॉलेज में आप लोग ने स्पेसिफिक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें हम लोग नेम असाइन कर रहे हैं ITS. ओके, देन कंस्ट्रक्टर, आई होप कंस्ट्रक्टर कल ही हम लोग ने देखा है, क्लियर है? दैट इज कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज योर क्लास नेम. तो यहाँ पे स्टूडेंट का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे, वहां पे रोल नंबर और नेम हम लोग असाइन कर रहे हैं, जो भी होगा वो हम लोग स्टोर करवा रहे हैं. ओके, एंड फाइनली ये मेरा मेथड है डिस्प्ले, वहां पे मैं रोल नंबर, नेम और कॉलेज को डिस्प्ले करवा रही हूँ, वैल्यू को, राइट? देन दूसरा क्लास है दैट इज क्लास आउटसाइड द मेन, राइट? 2 क्लास मेरे यहाँ पे मैंने लिए है, और दूसरे क्लास में जस्ट इन केस ऑफ मेन मेथड स्टूडेंट की 2 ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर रही हूँ. वन ऑब्जेक्ट कंटेन द वैल्यू 111 एंड करण, राइट? ये कहाँ पे जाएगा? कंस्ट्रक्टर में जाएगा. वंस योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर विल बी ऑटोमेटिकली कॉल, राइट? आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा. ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन बताएगा? चिराग, कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? चिराग इज देयर? बादल, ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है? कल हम लोग ने 2 कंस्ट्रक्टर देखे थे, राइट? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट हैव नो आर्ग्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट. तो ये कौन सा वाला है चिराग? यस, श्रेय, ममता, पैरामीटर. हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? सो अगेन यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग, एंड दैट विल स्टोर ओवर हियर, फाइनली पास होंगे, फाइनली रोल नंबर नेम में असाइन हो जाएंगे. सिमिलरली व्हेन सेकंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अगेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूटेड एंड इट विल सेव द डेटा, राइट? सो कैसे एलोकेट होगा? स्टैक एलोकेट होगा. फर्स्ट आपका S1 क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हीप मेमोरी एलोकेशन में उसका डेटा स्टोर हो रहा है. अगेन S2 हुआ और यहाँ पे उसका डेटा स्टोर हो रहा है. दिस हाउ इट वर्क, राइट? देन व्हेन S1 डॉट डिस्प्ले इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे क्यों S1 डॉट डिस्प्ले लिखा है? क्योंकि ये डिस्प्ले आपका मेथड है, राइट? सो अगेन S1 डॉट डिस्प्ले, S1 आपका ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू आप डिस्प्ले फंक्शन जब एग्जीक्यूट करोगे, so then it will display this first content आपका डिस्प्ले होगा, right? Then when S2 dot display will executed, this second content will executed, right? यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे that already this S1 और S2 से आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ये 2 वैल्यू आप लोग इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, स्टोर हो रहा है मेमोरी में. बट द कॉलेज इज, वी हैव टेकन द वैल्यू एज अ स्टैटिक वेरिएबल और वहां पे हम लोग का वैल्यू कौन सा स्टोर करवा रहे हैं? ITS. So it will applicable to all the object, right? और वो एट अ टाइम एक ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, ओनली वंस ही मेमोरी एलोकेट करेगी, एवरी टाइम वो इंस्टेंस में स्टोर करने की जरूरत नहीं है मेमोरी में. ओके, सो व्हेन आप जब भी डिस्प्ले करोगे कॉलेज का कंटेंट, सो इट विल डिस्प्ले फॉर द ऑल, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके लिए सेम ही होगा, दैट इज ITS. क्लियर है? सपोज इफ यू वांट टू चेंज द स्टैटिक वेरिएबल, कौन सा है आपका स्टैटिक वेरिएबल? ये कंटेंट आपको चेंज करना है, राइट? सो हाउ यू विल एग्जीक्यूटेड दैट? दैट इज स्टूडेंट आपका क्लास नेम है, राइट? ये डॉट कॉलेज, दैट इज योर मेंबर नेम, राइट? इक्वल टू BBDIT, राइट? तो आप मेन में उसको चेंज कर सकते हो, एंड द स्टैटिक वेरिएबल is always access through the class. वो ऑब्जेक्ट के से का एक्सेस नहीं होगा, it will access through your class of your member, right? So ये कौन सा क्लास है? आपका नाम स्टूडेंट है, so dot college equal to BBDIT. अगर यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है इसको,
अगर ये कमेंट में आप हटा दोगे एंड व्हेन इट एग्जीक्यूटेड, सो इंस्टेड ऑफ ITS इट विल एग्जीक्यूटेड फॉर बोथ BBA DIT. क्लियर है? समझ में आ रहा है? शैल आई रिपीट अगेन? Yes. Yes, ma'am. No, ma'am. Sujal, shall I repeat? No, ma'am. Okay, clear है? So Yes, static variable is always accessed through your class name, right? यहाँ पे class name से access होगा. You cannot direct आप उसको object through access करने की जरूरत नहीं है. And it will execute it, क्या होगा finally? It will give the memory allocation only one time. उसकी जो memory allocation है one time ही execute होगी, तो उसकी memory saving हो रही है, right? So जो instance variable है every time change हो रहा है. Student name और roll number will be change every time, right? So that's why उसको instantly हम लोग object through call कर रहे हैं. But जो static है that you can give as a static variable. Static variable में आप declare कर सकते हो. Okay? Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay. Then next. I hope this one is clear diagram. जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके इंस्टेंस और वैल्यू स्टोर होती जाएगी मेमोरी में, हीप मेमोरी में. But once it will execute, declare as a static, it will allocate only once in a memory and that will be applicable for all. Right? This is the advantage of your static variable. Then next. Program to be counter without static variable. Right? कि अगर हम लोग static variable में नहीं देंगे और counter execute करते तो how it work? So in this example, we have created the instance variable name count, which is incremented in the constructor, right? So देख लेते कैसे workout हो रहा है. एक class है counter नाम का, right? वहां पे मैंने एक variable declare किया count equal to 0. Okay? ये कौन सा instance variable हो गया आपका, right? Counter ये क्या है यार? Counter यहाँ पे कौन बताएगा? Constructor. Good. So यहाँ पे constructor कॉल हो रहा है. वहां पे आप काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो. इनिशियली 0 इनिशियलाइज किया आपने, राइट? और फिर उसको प्रिंट करवा रहे हो कंस्ट्रक्टर में, राइट? देन इन केस ऑफ मेन, ये क्लास विथ इन मेन है, राइट? इनसाइड द मेन. देन यहाँ पे काउंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, राइट? सो C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू असाइन हुई 1, राइट? अगेन C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू तो इनिशियली 0 होगी, तो अगेन इट एग्जीक्यूटेड 1. अगेन थर्ड टाइम थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और वैल्यू सो इट कि वो 1 1 1 ही इनिशियलाइज दे रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क इन योर स्टैटिक वेरिएबल. सेम वे सेम प्रोग्राम, राइट? What is the advantage of static variable? We'll get the memory only once, right? So if the object change the value of the static variable, it retain its value. That is the advantage, right? So again, count class counter 2 लिया, यहाँ पे हम लोग count static ले रहे हैं, right? Initially non static था, यहाँ पे हम लोग counter static ले रहे हैं. Okay? Now again constructor call हो रहा है, right? Counter 2. देन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क. क्लास काउंटर 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट? इन दिस केस काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 थी, अब 1 हुई, राइट? अगेन सेकेंड टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट? ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो नाउ इट विल रिटेन द वैल्यू, राइट? जो वैल्यू है, बिकॉज ओवर हियर द स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड, राइट? सो वो मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी और इसकी वैल्यू रिटेन करेगा. तो इनिशियली वो 1 था, तो अभी वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कौन सी वैल्यू लेगा? 2. देन थर्ड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अगेन इट विल एग्जीक्यूटेड, देन इट टेक द वैल्यू एज अ 3, राइट? So static variable will get the memory only once. If the object change the value of static variable, then it retain the value. Object change होगा तो भी उसकी value retain होगी, right? If your variable is a static. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure.
फाल्गुनी, कोमल, Henny, shall I repeat? Repeat करो एक बार. Meet, both meet. नो मैम, समझ पड़ी. ખબર પડે છે? यस मैम. Okay. Payal. Yes, Okay. ma'am. So shall we move to new topic? Clear as static variable? Sure. Yes ma'am. Now let's see what do you mean by static method, right? So if you apply static keyword with any method, right, it is known as a static method, right? कोई भी method को आप static keyword apply करोगे, so वो आपकी static method हो जाएगी. Okay, static method belong to the class rather than object of a class, right? Let's see how static method can be invoked, right? वो invoke होगा without need for creating the instance of a class. वो डायरेक्टली क्रिएट इन्वॉक हो जाएगा, राइट? उसको ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट? स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ डेट, राइट? जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, जो स्टैटिक वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू चेंज करनी है, सो वी कैन डू इन द विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेथड, राइट? लेट्स सी इन दिस एग्जांपल. आपका क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पे हम लोग ने दो वेरिएबल्स लिए, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल, रोल नंबर, नेम, राइट? स्टैटिक कीवर्ड से अपने कॉलेज का नेम दिया है ITS, राइट? नाउ दिस इज योर स्टैटिक मेथड. ये स्टैटिक मेथड है आपको, और चेंज कर रहे हो यहाँ पे आप कॉलेज नेम इक्वल टू BBDIT, राइट? नाउ कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? वहां पे जो भी आप पैरामीटर्स पास करोगे वो वैल्यू असाइन होगी. एंड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल एंड डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए. और दूसरे क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले देयर इज नो नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट थ्रू आप स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट? How it will call with the help of your student class. तो आपका क्लास स्टूडेंट है डॉट चेंज, राइट? चेंज आपकी कौन सी मेथड है? स्टैटिक मेथड, राइट? सो फाइनली जो इनिशियली आपने ITS नेम दिया था कॉलेज का, दैट विल बी चेंज्ड बाय BBDIT. ओके, सो इट वो एग्जीक्यूट चेंज हो जाएगा. नाउ यू आर क्रिएटिंग योर स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक वन वैल्यू पास हो गई, राइट? वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, राइट? सो 3 वैल्यू आपकी स्टोर हो गई, राइट? लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ दिस S3 भी कॉल होगा, 3 वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगी. ओके, देन when S1 dot display is executed, finally आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट? यहाँ पे आप लोग कॉलेज की वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हो. ओके, सो ऑलरेडी ये दो पैरामीटर्स तो आप लोग पास कर ही रहे हो, राइट? दैट विल ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, बट कॉलेज इज योर स्टैटिक, सो इट विल एप्लीकेबल टू फॉर ऑल द सेम, राइट? सो फाइनली ये तीनों में execute होगा. So over here, static method is used to change the value of your static variable, right? यहाँ पे हम लोग static variable का value change कर रहे हैं. And to call the static variable, class name and then method name you have to use. Clear है? मैम रिपीट करो ना. ओके ओके, चलो वापस देखते हैं. ध्यान है सबका? ओके, चलो. ओके, क्लास आपका स्टूडेंट है, राइट? यहाँ पे अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? स्टैटिक वेरिएबल देखा था. नाउ दिस इज योर स्टैटिक मेथड आल्सो देयर, राइट? स्टैटिक मेथड भी हम लोग देख रहे हैं. ओके, सो अगेन क्लास स्टूडेंट है, दिस रोल नंबर एंड नेम इज योर इंस्टेंस वेरिएबल. वन
स्टैटिक वेरिएबल इज देयर, वहां पे कॉलेज नेम आपका कॉमन है, दैट इज ITS, दैट वाई वी डिक्लेयर एज अ स्टैटिक वेरिएबल, राइट? स्टैटिक वेरिएबल हमने ऊपर देखा है, ओके? एंड स्टैटिक मेथड इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, राइट? स्टैटिक मेथड क्यों यूज हो रहा है? टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल. सो नाउ इन स्टैटिक मेथड कॉलेज नेम है BBDIT, जो इनिशियली हमने दिया था ITS, राइट? देन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है मेथड टू डिस्प्ले. हाउ इट वर्क, क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन किया है. नाउ स्टैटिक वेरिएबल कैसे, स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होगा? दैट इज योर स्टूडेंट क्लास नेम डॉट चेंज. चेंज इज नथिंग बट योर स्टैटिक मेथड, तो वो कॉल हो जाएगा, राइट? सो वहां पे क्या हो जाएगा, जो इनिशियली आपने वैल्यू ITS दिया था वो BBDIT हो जाएगा, ओके? देन एवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वन S1 S2 एंड S3, और पर्टिकुलरली जो भी वैल्यू है रोल नंबर और नेम की वो स्टोर हो जाएगी, राइट? S1 ऑब्जेक्ट में, देन S2 ऑब्जेक्ट एंड S3 ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू, राइट? एंड व्हेन थ्रू दिस ऑब्जेक्ट S1 आप डिस्प्ले फंक्शन इन्वोक करोगे, सो वो वैल्यू प्रिंट होगी. तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है S1 में? 111 करण, और कॉलेज नेम जो आपने चेंज किया था BBDIT. सो फाइनली ये एग्जीक्यूट होगा. When S2 dot display will execute it, तो ये पैरामीटर्स वैल्यू जो ऑलरेडी स्टोर है S2 में, तो और वो उसका कॉमन कॉलेज नेम वो फाइनली प्रिंट होगा. सिमिलरली फॉर S3, राइट? सो यहाँ पे न्यू फीचर्स कौन सा है? That is your static method that is used to change the value of your static variable, right? And it will call automatically with the help of class name. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं. The static method will call with the help of class name dot your method name. Clear? Yes, ma'am. Sure. रचना, Yeah. रिंकल, Yes, ma'am. हो पढ़े છે? Yes, ma'am. पायल, स्मित, Yes, ma'am. स्मित, ma'am. शेफाली, विष्णु, यस मैम. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. ओके. सो स्टैटिक वेरिएबल और मेथड क्लियर है? स्टैटिक वेरिएबल कब यूज होता है, कौन बताएगा? यस, प्रिया. मैम स्टैटिक वेरिएबल को हम चेंज स्टैटिक मेथड में ही क्यों करें? उसको तो हम मेन मेथड में भी कर सकते हैं ना. हाँ कर सकते हैं ना, दैट इज अ Static वन method वे. बनाए. ये वन वे है टू चेंज द. बाकी हम लोग ने जैसे दूसरे प्रोग्राम में मैंने बताई आप लोगों को पहले स्टैटिक वेरिएबल में, दैट यू कैन आल्सो असाइन इन योर प्रोग्राम पार्ट, राइट? कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी देखा ही है, राइट? दैट इज आपका कौन सा है, ये स्टूडेंट कॉलेज, ये स्टैटिक वेरिएबल है, राइट? और यहाँ पे ITS दिया है, ओके? ये मैंने कमेंट सेक्शन में डाला था, बट इफ यू रिमूव द कमेंट एंड यू कैन एग्जीक्यूट इट, दैट इज स्टूडेंट डॉट कॉलेज. कॉलेज इज योर स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है और वहां पे असाइन करो, तो दिस इज ऑल्सो वन वे, राइट? सो डिफरेंट वे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. But to call the static variable and method, you have to use the class name. Okay? Okay. Then next, what is the use of static? That is applicable, it allocate memory only once and it applicable to all the object, right? Then next. Okay, this is the another example. That is suppose class calculate is used, right? यहाँ पे static method use किया है cube, right? और it will return the answer, the cube का answer return करेगा, right? Then again result एक variable declare किया है, वहां पे आप value store करवाओ इसकी, right? Again it's a static
मेथड है, इसलिए आप यहाँ पे क्लास नेम दैट इज कैलकुलेट डॉट क्यूब और पैरामीटर पास करो 5. ओके, दैट विल 5 विल स्टोर ओवर हियर और फाइनली उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे रिजल्ट की, एंड इट विल स्टोर ओवर हियर इन रिजल्ट एंड फाइनली system डॉट आउट डॉट से उसका रिजल्ट प्रिंट होगा, दैट इज नथिंग बट 125. ओके, सो जरूरी नहीं है चेंज करने के लिए भी आप यूज करो. यहाँ पे एक प्रोग्राम में एग्जांपल लिया था मैंने. ओके, आप यहाँ पे जैसे क्यूब परफॉर्म हो रहा था, यू कैन यूज नंबर ऑफ मेथड्स एंड यूज इट, राइट. बट अगेन ऑब्जेक्ट्स थ्रू उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू एक्सेस थ्रू द क्लास. क्लियर? क्लियर? वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. Okay. Then next, what is the restriction for the static method? There are two main restrictions, that static method cannot use the static non-static data member or call non-static method directly, right? Or this and super keyword cannot be used with a static context, right? This और super हमारा भी बाकी है. We will see in my next session वो कैसे यूज करते हैं आप लोग कीवर्ड, बट उसके साथ वो स्टैटिक का कंटेक्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा, राइट. और प्लस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेथड से उसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो. ओके, लेट्स सी द वन एग्जांपल. ध्यान है सबका? सपोज ये क्लास आपका ए है और यहाँ पे मैं वैल्यू ए की असाइन कर रही हूँ 40, राइट. ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है, राइट. और मेन में हम लोग जस्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहे ए की, राइट. सो ये मेन भी आपका स्टैटिक ही है, स्टैटिक वॉइड मेन आप लिख रहे हो, राइट. सो यहाँ पे मैं कंपाइलर एरर आपका थ्रो कर रहा है. क्यों कंपाइलर एरर थ्रो करेगा? बिकॉज स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी यूज non-static data members और non-static method directly, right? ये आपका non-static members को directly use नहीं कर सकते. So इसको अगर एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? इसको एक्सेस करना है तो कौन बताएगा? Static integer declare कर रहे हैं. स्टैटिक इंटीजर ही डिक्लेयर है. समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? राइट. जो दिस इज माय वेरिएबल जस्ट आई हैव डिक्लेयर इंटीजर a इक्वल टू 40, राइट. पर अगर ये आपका मेथड स्टैटिक होगा सो वो डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट. सो यहाँ पे अगर आप a लिखोगे तो वो एरर थ्रो करेगा. अभी अब तक आप लोग यूज वही कर रहे थे, राइट. तो यहाँ पे कंपाइलर एरर दे रहा है. सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो कैसे करोगे आप लोग? नॉन स्टैटिक को स्टैटिक. नहीं यार, अभी तक आप लोग यूज कर रहे थे. हाँ Method क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने का. हाँ, थ्रू द ऑब्जेक्ट. सारे प्रोग्राम में आप लोग ऐसे ही कर रहे हो, फिर भी भूल गए. हाँ, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट थ्रू आप एक्सेस करोगे, राइट. सो इंटीजर इक्वल टू 40, राइट. यहाँ पे आपका ए आपका क्लास है, उसका O1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट. और वो ऑब्जेक्ट थ्रू वो मेंबर को एक्सेस कर रहे हो आप, राइट. और फिर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर आपका आएगा 40. क्लियर है? सो दिस इज द वन रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैटिक मेथड कि आप यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, राइट, नॉन मेंबर को. क्लियर? दैट्स व्हाई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके थ्रू हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, जो हम लोग एवरी टाइम प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, राइट. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next, instance operator, right? Clear na? Static, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So now next it instance of operator, बहुत easy है. Instance of operator is used to check whether the object is the instance of that particular class or not, right? जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आपने, वो पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं वो चेक करना है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप. ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट? ऑब्जेक्ट नेम इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम सेमीकोलन. ओके, सो अगर
ऑब्जेक्ट नेम इज इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम होगा, सो द ऑपरेटर विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू, एल्स इट रिटर्न द फॉल्स। आंसर वो ट्रू फॉल्स में रहेगा, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ओके, लेट्स सी द वन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम। राइट, ध्यान है सबका? हाँ ओके, सो ये क्लास आपका डेमो है। राइट, डेमो नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, उसमें हम लोग मेन ले रहे हैं और यहाँ पे आप स्ट्रिंग टाइप ले रहे हो और उसका वेरिएबल है नेम और स्ट्रिंग दे रहे हो जावा प्रोग्राम। राइट, देन बुलियन क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन द केस ऑफ ट्रू और फॉल्स। राइट, सो बुलियन वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट 1। राइट, वहां पे चेक कर रहे हो नेम इज अ इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। नेम जो स्ट्रिंग है आपका वेरिएबल, वो स्ट्रिंग का इंस्टेंस है। राइट, सो जब इसको प्रिंट कराओगे आप रिजल्ट को, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इज इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट 1। अगर वो डेटा टाइप स्ट्रिंग से बिलोंग करेगा ये वेरिएबल, तो आंसर देगा ट्रू। राइट, देन जो डेमो है उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, डेमो ऑब्जेक्ट न्यू डेमो। राइट, देन यू विल चेक अगेन बुलियन रिजल्ट 2 चेक कर रहे हो, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ डेमो। ये ऑब्जेक्ट हो डेमो का इंस्टेंस है। राइट, अगर ये ऑब्जेक्ट डेमो क्लास से बिलोंग करेगा, उसका इंस्टेंस होगा, तो फाइनली इसमें रिजल्ट आएगा ट्रू। राइट, so with the help of instance operator you can check the type and object class। right, पर्टिकुलर वेरिएबल वो टाइप से बिलोंग करता है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो क्लास से है या नहीं, वो चेक कर सकते हो, एंड इट विल रिटर्न द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? yes ma'am. एनी डाउट? मैम, हाँ प्रिया। हम रिजल्ट का डेटा टाइप बुलियन नहीं लेंगे तो एरर आएगा। वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। राइट, दैट्स व्हाई हम लोग इसका फाइनली जो रिजल्ट स्टोर है दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, जैसा हम लोग ने बुलियन दिया है। ओके, ओके, क्लियर? राइट, एनी डाउट? मैम अगर इंटीजर में लेશું તો 0 and 1 આવશે વેલ્યુ हाँ કે हाँ, you can check instant તમે અગર integer લો અને 0 અને value બી છે તો it will execute it 1 આવશે તો ટ્રુ ને 0 આવશે તો ફોલ્સ। हाँ हाँ, થશે it will execute it। ઓકે you can check during the practical time, check કરી શકો, but it execute 0 1 true false term માં થશે। હા right, okay, any doubt? So clear static variable, static method and instance of operator। Yes, ma'am. Okay, है कोई डाउट? So we discuss it। प्रिया, कोई डाउट है? नो। ओके, तो आपका एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में एंटर कर दो।